السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کے جاری دھرنے میں 3 اور 4 مئی کی درمیانی رات یعنی آج رات کو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلوانوں نے مار پیٹ کا بھی الزام لگایا۔ اس واقعے میں ایک پہلوان کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ واقعے کے بعد دہلی خواتین کمیشن کی سربراہ سواتی مالیوال، دہلی حکومت کے وزیر سوربھ بھردواج، MLA کلدیپ اور کئی دوسرے لیڈر جنتر منتر پہنچ گئے، جنہیں دہلی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ دراصل ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب سومناتھ بھارتی جنتر منتر پر پہلوانوں کے جاری دھرنے میں تہبند بستر لے کر پہنچ گئے۔ سومناتھ بھارتی نے اس کے لیے اجازت نہیں لی تھی، اس پر دہلی پولیس نے انہیں روک دیا۔ پولیس اہلکاروں کے روکنے کے بعد وہاں موجود سومناتھ بھارتی کے حامی مشتعل ہو گئے اور ٹرک سے بستر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران پولیس اور سومناتھ بھارتی کے حامیوں اور پہلوانوں کے درمیان گرما گرم بحث ہو گئی۔ دہلی پولیس نے سومناتھ بھارتی کو 2 دیگر افراد کے ساتھ حراست میں لے لیا ہے۔ اس بارے میں پہلوانوں کا کہنا ہے کہ پانی بھر گیا ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ دھرمیندر یعنی ایک پولیس اہلکار نے دھکا دینا شروع کر دیا اور ایک پولیس اہلکار شراب پی کر ان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ I would like to extend my gratitude to MS Education Academy for giving us the opportunity for being one of the 100 young parliamentarians. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے پر پھیلا کے پرواز کریں۔ Please click the following link in description for more details. جنتر منتر پر پہلوانوں اور دہلی پولیس کے درمیان آج دیر رات تک ہاتھا پائی کے بعد پہلوانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ احتجاج کے مقام پر پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے دہلی پولیس نے آج جمعرات کی صبح کہا کہ پہلوانوں کے حامی اس وقت جارحانہ ہو گئے جب انہیں احتجاجی مقام پر فولڈنگ بیڈز لگانے سے روک دیا گیا، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ جنتر منتر پر احتجاجی مقام پر فولڈنگ بیڈ لگانے نہیں دیے گئے چونکہ وہاں کوئی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم نے اجازت نہیں دی۔ DCP پرناو تائل نے کہا کہ اس لیے احتجاج کرنے والے پہلوانوں کے کچھ حامیوں نے ٹرک سے بستر نکالنے کی کوشش کی اور ان سے جھگڑا ہو گیا۔ پولیس نے انہیں صرف روکنے کی کوشش کی۔ آپریشن کاویری کے تحت سوڈان میں پھنسے 135 ہندوستانی انخلا کے ساتھ 22ویں کھیپ IFC-130J طیارے پر جنگ زدہ سوڈان سے سعودی عرب کے جدہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے آج جمعرات کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ انخلا کرنے والوں کی 22ویں کھیپ پورٹ سوڈان سے روانہ ہو گئی ہے۔ IFC-130J طیارے میں 135 مسافر جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہیں۔ بہار کے JDU کے رکن پارلیمنٹ کولسیندر کمار نے بجرنگ دل پر پابندی لگانے کی مانگ کی ہے۔ نالندہ سے لوک سبھا کے رکن کمار نے کہا، میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر بجرنگ دل جیسی کوئی تنظیم اچھے کام کرے گی تو ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن اگر اس تنظیم کے لوگ غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ریاستی حکومت بجرنگ دل پر پابندی عائد نہیں کرے گی تو وہ خود کریں گے۔ کمار نے یہ ریمارکس اس سال رام نومی کے دوران بہار شریف نالندہ میں ہوئے تشدد کے تناظر میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہندو ہوں اور جب بھی میں کسی بھی ہنومان مندر کو دیکھتا ہوں میرا سر خود بخود ہمارے لارڈ بجرنگ بلی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بہار شریف میں جمع ہونے اور غنڈہ گردی اور فرقہ فسادات کرنے کی ہدایت نہیں کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بجرنگ دل ہنومان کے نام پر کر رہے یہ بالکل غلط ہے۔ مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی 1.5 سال بعد جیل سے رہا ہو گئے۔ چاشمے کی رات مولانا کے وکیل اسامہ ندوی نے ان کا جیل کے باہر استقبال کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ سے ضمانت منظور ہونے کے تقریباً 1 ماہ بعد مولانا کلیم صدیقی کی جیل سے رہائی عمل میں آئی۔ واضح ہے کہ مبینہ تبدیلی مذہب کے کیس میں مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی کو 5 اپریل کو مشروط ضمانت ملی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے گزشتہ 1.5 سال سے محروس مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت منظور کی تھی۔ اتر پردیش کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے مولانا کلیم صدیقی کو جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں میرٹھ سے سپٹمبر 2021 میں گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا تھا۔ کانگریس پر شدید تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ پارٹی کی پوری سیاست پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر مبنی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی نے پوری دنیا میں ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جبکہ ہندوستان کی جمہوریت اور ترقی کی عالمی سطح پر ستائش کی جا رہی ہے اور احترام کیا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پارٹی پر ہندوستان کی افواج کی توہین کا بھی الزام لگایا۔ مودی نے کہا کہ کانگریس امن اور ترقی کی دشمن ہے۔ جب کانگریس کا دور تھا سرمایہ کار بھاگ رہے تھے۔ کانگریس دہشت گردی کے آقاؤں کا تحفظ کرتی ہے اور خوشامد کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سالی کرناٹک کے ضلع دکشن کنٹر میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کانگریس کی واحد شناخت خوشامد کی سیاست ہے۔
इस दौरान वज़ीर आज़म ने कलबुर्गी में एक इंतखाबी जलसे का आगाज़ जय बजरंग बली कहते हुए किया। उन्होंने एक ऐसे वक्त यह तकरीर की जब एक दिन कबल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का वादा किया। इस अवसर पर वज़ीर आज़म ने एक दिन कबल कहा था कि कांग्रेस ने पहले लॉर्ड राम को बंद किया और अब हनुमान भक्तों को बंद करने की बात कर रही है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करते हुए वोटर से कहा कि वो वोट देते हुए बजरंग बली कहें और बदज़बानी के कल्चर के लिए कांग्रेस को सजा दें। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। इस दरमियान बीजेपी के कुछ सरकर्दा लीडरान इंतखाबी रैलियों में मुसलसिल नफरत अंगेज़ बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के एक नुमाइंदा वफ्द ने इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मुलाकात की है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर अपनी शिकायत सामने रखी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया कि नफरत अंगेज़ बयानबाजी के जरिए समाज को डराने, तकसीम करने और गुमराह करने की कोशिशें की जा रही है। इस मामले में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की गई। कांग्रेस का जो वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा था, इसमें पार्टी के सीनियर लीडरान में शामिल सलमान खुर्शीद, विवेक तनखा, अजय माकिन और पवन खेड़ा शामिल थे। मरकज़ और हुकूमत दिल्ली ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को 100 रुपये से ऊपर की तमाम करेंसी नोटों को वापस तलब करने के अलावा 10,000 रुपये से ज़ायद के तमाम नकद रकमी लेन देन पर पाबंदी और 50,000 रुपये से ज़ायद के असासों को आधार से जोड़ने पर अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराया। इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि नकद लेन देन को फ़िज़ाई टिकट, रेलवे टिकट, बरक़ी बिल, LPG बिल, CNG बिल, बल्दिया के बिल और दीगर तमाम बिलों के लिए जो 10,000 रुपये या इससे ज़ायद हों महदूद कर दिया जाए। यह दावा किया गया कि करप्शन को रोकने, ब्लैक मनी की पैदावार, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी मामलों और गैर महसूब असासे जमा करने से रोकने के लिए ये एक अमली हल है। दरख्वास्त में यह भी गुजारिश की गई कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से अशिया और खिदमात की ऑनलाइन शॉपिंग पर नकद लेन देन को महदूद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज़ी और दिल्ली हुकूमतों के वकील से कहा कि वो हिदायतें हासिल करें और इस मामले की मज़ीद समाअत अगस्त में मुकर्रर की है। बहरहाल कोई रस्मी नोटिस जारी नहीं की गई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना पर्सनल लॉ छोड़ दें और अपनी शादियों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को इख्तियार करें, जबकि हिंदुओं को इजाज़त दी जा रही है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादियां करवाएं। ओवैसी ने कहा कि इस तरह की हरकत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर शादियों के रजिस्ट्रेशन को तब्दील करें। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हुकूमत की जानिब से शादियों के लाजमी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ करने पर एक ट्वीट में आज ये बात बताई। सऊदी अरब की हुकूमत और मुमलिकत के सिक्योरिटी इदारे सूडान में जारी जंग से भाग कर आने वालों की खिदमत में पेश हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से सूडान से आने वालों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आया जा रहा है। यही वजह है कि इनखला के बाद आने वालों की तरफ से सऊदी सिक्योरिटी सर्विसेज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया ऐसे वीडियोस और तस्वीरी मनाजिर से भरा पड़ा है जिनमें सऊदी शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के हुस्न सलूक को देखा जा सकता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकार पनाह गज़ीनों के साथ मेहरबानी और शफकत का मुजाहरा करते देखा जा सकता है। हुकूमत तेलंगाना ने बल्दी इंतजामिया को मजीद गैर मरकूज करते हुए गैर मामूली फैसला लिया है, जिसके तहत इंतजामिया शहरियों से मजीद करीब हो जाएगा। इस फैसले के तहत रियासती हुकूमत ने दारुल हैदराबाद में वार्ड हुक्मरानी के नज़रिए पर अमलावरी का फैसला किया है। वज़ीर बल्दी नज़्व व शहरी तरक्की KT रामाराव, जिन्होंने अपने मुतालिका महकमे के सीनियर अहदेदारों के साथ तौसी इजलास मुनक़िद किया, कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 150 वार्ड्स में मुकामी वार्ड दफातर होंगे, जहाँ पर शहरी पहुंचकर अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं और वो तजावीज़ भी दे सकते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्व ने अहदेदारों से कहा कि वो रवां माह के ख़त्म तक वार्ड हुक्मरानी के निज़ाम पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हर वार्ड दफ्तर एक असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अहदेदार की क़यादत में काम करेगा, जहां फील्ड सतह के अहदेदार और अरकान भी मौजूद रहेंगे। सफाई, सड़कों की निगहदाश्त, बरक़ी की सरबराही, वेटरनरी शोबा, महकमा वाटर वर्क्स और टाउन प्लानिंग शोबे की शिकायत की इस वार्ड ऑफिस के जरिए यकसुई की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए जूनियर पंचायत राज सेक्रेटरीज की खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। रियासत के 9,350 जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज अपने मुतालबात की तकमील के लिए गुज़िश्ता 6 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि इनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा जायज़ है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली में ऐलान किया था कि रियासत में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाएगा। नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने की फाइल पर दस्तखत किए, लेकिन मुसाबिकती इम्तिहानात के जरिए अहलियत हासिल करने वाले जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की मुलाजमत को ख़त्म हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें बाकायदा नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि दही इलाकों की तरक्की में पंचायत सेक्रेटरीज का अहम रोल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के एहतजाज और बाज़ अरकान के रिमार्क से नाराज ओहदेदार इजलास छोड़कर चले गए। मुख्तसर कार्रवाई के बाद मेयर ने इजलास को मुलतवी किया। बल्दी इजलास में अवामी मसाइल पर कोई बातचीत नहीं हो सकी। कंटोनमेंट के रुकने असेंबली जी साई अन्ना और कॉर्पोरेटर को ताज़ियत पेश की गई। मजलिस के नौमुंतखब रुकन कौंसल रहमत बेग का तारुफ किया गया। इसके बाद बीजेपी अरकान जो इजलास में सियाह मलबूसा ज़ेबतन किए हुए आए थे, उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी। हुक्मरान बीआरएस और बीजेपी में नोकझोंक हुई। इजलास को मुलतवी करने के लिए मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल ने मीडिया को बताया कि बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का रवैया अफसोसनाक है। रियासत तेलंगाना की मुमताज़ दीनी मदरसा जामे दारुल उलूम हैदराबाद वाक़ शिवरामपल्ली के बाबुद दाखिले की कमान को मुनज़्ज़म करने जीएचएमसी की कोशिश आज उस वक्त नाकाम हो गई जब मदरसे की कमेटी के एक रुकन डॉक्टर निज़ामुद्दीन तलबा के हमरा इन्हदामी कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की और एहतजाज बुलंद किया। इस दौरान नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा भी वहां पहुंच गए और इन्हदामी कार्रवाई की कोशिश के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। बाज़ मीडिया से बात करते हुए मौलाना मोहतरम ने कहा कि आज 12 बजे के दरमियान जीएचएमसी के बाद अहलकार बुलडोजर लेकर दारुल उलूम मदरसा पहुंच गए और बाबुद दाखिले की कमान को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही उन्होंने मदरसे के जिम्मेदार डॉक्टर निज़ामुद्दीन के साथ मुकाम वाक़ पहुंच गए और इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया, जिस पर फौरी इन्हदामी कार्रवाई रोक दी गई। बताया गया कि बल्दिया का अमला सड़क की जानिब कमान के 3 फीट हिस्से को मुनज़्ज़म करना चाहता था। मौलाना जाफ़र पाशा का कहना है कि जीएचएमसी की जानिब से मदरसे को क़ब्ल अज़ वक्त कोई नोटिस जारी नहीं की गई। हमने सड़क की तोसी के लिए मदरसे की जितनी ज़मीन देना था वो दे चुके हैं। मज़ीद 3 फीट हिस्से को मुनज़्ज़म करेंगे तो दोनों कमानें मुनज़्ज़म हो जाएंगी। मौलाना ने कहा कि आखिर हुकूमत मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तेलंगाना की बजरंग दल यूनिट ने नामपल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने बजरंग दल को अब ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तशबीह दी थी और कहा कि पार्टी फैसलाकुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है।